باطل نے جب جب بدلے گئے تگور، آیا گئے تب تب میری زباں پر، باطل نے جب جب بدلے گئے تگور، آیا گئے تب تب میری زباں پر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ ہلو جی مولانا جی، اظہر علی سید صاحب بول رہے ہیں؟ جی ہاں، دیوبندی مطلب سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، فرمائیے کیا اعتراض ہے جناب؟ جی اعتراض تو مطلب ایسا کوئی بڑا اعتراض تو نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی تھی۔ فرمائیے۔ اصل میں بات یوں ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے دو مذہب ہیں، یعنی آیات متشابہات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے تعلق سے، آئین اللہ کے تعلق سے دو مذہب نہیں ہے، صرف ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی مطابق ہے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ جی میں فرما رہا ہوں، آگے میری بات سنیں۔ جی آیات متشابہات کے تعلق سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بہقی کی جو کتاب ہے اسماء و صفات، اس کے حوالے جو ہے مفتی رشید محمود رضوی صاحب، انہوں نے جو ہے انجینئر علی مرزا کے رد میں پیش کیے اور یوں پیش کیے کہ بھائی اہل سنت والجماعت کے دو مسلک ہیں یا دو مذہب ہیں اس تعلق سے، اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے۔ ایک تو ہے تفویض کا، کہ جو معنی مراد ہے اللہ کے سپرد کر دیے جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسلک ہے تعویل کا، ایسا معنی لیا جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو۔ جی تو یہ جو چیزیں ہیں، دو چیزیں، مولانا مفتی رشید محمود رضوی صاحب جو کہ مناظر ہیں، جی آپ جانتے ہوں گے ان کو۔ جی اور دیکھیے جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، تو میں میں یہ فرما رہا ہوں کہ ان دو مذاہب کو آپ مانتے ہیں نا کہ امام بہقی نے بھی لکھا ہے اور امام سیوطی نے بھی لکھا ہے، امام نووی نے بھی لکھا ہے۔ وہ تو کوئی تضاد لازم نہیں آیا اس میں، جو آپ بول رہے ہیں اس میں کوئی تضاد لازم نہیں آیا اور اس میں مذاکرہ نہیں ہے، لیکن آیت متشابہات پر آپ عقیدے بنانا دشواری ہے، عقیدہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ جتنی بھی آیت متشابہات ہے، جتنے بھی عرش استوا اللہ رب العزت کے بارے میں، جیسے الیاس گھمن صاحب بولے، آپ بول رہے تھے الیاس گھمن صاحب نے یہ فرمایا تھا، اور یہ کیا نام لیے ان کا؟ مفتی طارق مسعود صاحب۔ طارق مسعود صاحب، دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوا ان دونوں میں، ہے نا؟ کیسے؟ اس لیے کہ وہ عرش کے اوپر مانتے ہیں۔ میں دو چیزیں بتا رہا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے الفاظ تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر ہے اور آسمانوں پر ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یوں کہیں تو اس سے مراد جو ہے یوں آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جہت لازم آ گئی، اللہ کے لیے جسم لازم آ گیا۔ جی اور پھر اس کے بعد عقلاً بھی دلیل ہے اس کی اور شرعاً بھی دلیل۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کے آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش کے اوپر، یہ الفاظ نہیں تھے ان کے، بلکہ اللہ عرش پر ہے اور اللہ آسمانوں پر ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جہت اور جسم لازم آئے گا، اس کے رد میں ہم یوں کہیں گے کہ اس کا جو مراد معنی ہے یہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، تو کیا یہ تفویض میں داخل نہیں ہے؟ عرش تو جانتے ہیں، عرش ساتواں آسمان کے اوپر میں ہے، عرش ہے، اگر آسمان میں کہیں گے تو عرش چھوٹ جائے گا، اور عرش کہیں گے تو آسمان چھوٹ جائے گا۔ جی دونوں میں متضاد پیدا ہوں گے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے مکان ٹھہرانا ہی، تو پھر یہ جو سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، جی تعلق سے اگر ہم یوں کہیں کہ بھائی یہ اللہ نے جو کہہ دی اللہ اس کے علم سے جانتا ہے، اللہ پر حوالہ کر دیجیے گا۔ یہ آیتیں 8 جگہ ہے، آیتیں متشابہات کے جتنے بھی مفسرین مراد لیے ہیں نا، تو آیت متشابہات جو عرش استوا کر کے آیا ہے، پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 ہے نا، سورہ نمبر 7 میں آیا ہے، اور سورہ یونس میں بھی، سورہ یونس ہے پارہ نمبر 11 آیت نمبر 3۔ میں آپ کی بات مان چکا ہوں کہ یہ جو ہم الرحمن علی العرش استوا جب پڑھیں گے تو اس کا معنی مراد جو ہے اللہ کا عرش کا جو استوا ہے، اس سے کیا مراد ہے،
इसके जो है कितने माना बयान किए वो ज़ाहिरी माना पर अगर मुराद लेंगे तो ईमान व अकीदा बर्बाद हो जाएगा। जी जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि इसका माना और मुराद जो है अल्लाह के सुपुर्द करेंगे, सही है ना? तो अगर हम अल्लाह के सुपुर्द करेंगे इसका माने का तर्जुमा करके, तो क्या ये तफवीज़ होगी ना? जी, ये तफवीज़ होगी ना, तफवीज़, तस्वीर दो मतलब तफवीज़ ये आयत मुतशाबिहात से अकीदा नहीं बनाई है। मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम बैहकी ने फरमाया कि अहले सुन्नत के दो मसलक है, दो मजहब है, एक है तावील का, दूसरा है तफवीज़ का, कि अल्लाह के अस्मा व सिफात के ताल्लुक से जो तुम्हें पता चले और वो मुतशाबे हो तो तुम उसके ऊपर ऐसा ईमान लाओ और उसके माना मुराद जो है अल्लाह के सुपुर्द कर दो, ये है तफवीज़। जी जी। और बाद आयतों के अंदर जैसे अल्लाह के यदैन का ताल्लुक है, यदैन के ताल्लुक से आया है कुरान करीम में, तो वहाँ पे तुम तावील करो या उसका ज़ाहिरी लेके जो माना मुराद जो अल्लाह के सुपुर्द कर दो, या तुम उससे जो अल्लाह की कुदरत जो है माना मुराद ले लो। लेकिन तारिक मसूद साहब जो अपने बयान में बोले, जी, तो उन्होंने जो है मौलाना तारिक मसूद साहब ने यूँ कहा अपनी बात कहने के बाद कि मैं जो है हम जो है इसका माना मुराद अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। जी, तो अर्श पर कहना ही गलत होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को अर्श पर कहना ही गलत है, क्यों तो मकाम साबित होगा। अकलन जो दलील है, अकली दलील दे देता हूँ ताकि आप सुन लीजिए, गौर से सुनिएगा। नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मैं वो पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुने, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है मौलाना इलियास गुम्मन साहब दावत बरकातुहू का जो है उन्होंने जो अकीदा बयान किया कि अल्लाह जो है लामका है, इसका मैं कायल हूँ। लेकिन ये अगर कहता है कोई कि अल्लाह अर्श पर है, वो सरासर गलत है। अच्छा, तो फिर इसका कहना ही गलत होगा। इसका तर्जुमा क्या किया जाएगा? अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा तर्जमा नहीं, बस उसके मुराद अल्लाह की तरफ सपुर्द कर देते हैं। ज़ाहिरी माने पर आयत मुतशाबिहात पर तर्जमा पर नहीं जाएंगे, ज़ाहिरी माने पर अकीदा नहीं बनाया जाएगा। तर्जमा करने से अकीदा नहीं बनता है। ईमान के अंदर तर्जुमा क्या है? जितनी भी किताब मौजूद है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया। इस्तवा का फरमाया, इस्तवा में लिख दिया गया। इस्तवा का तर्जुमा क्या है? इस्तवा का तर्जुमा कोई नहीं जानता, वो आयत मुतशाबिहात में है, इसलिए इस्तवा कंजुल ईमान में तर्जुमा किया, तमाम उलमा ने इसका तर्जुमा किया। कंजुल ईमान में सिर्फ इस्तवा ही लिख दिया गया इसके लिए, कोई नहीं कि वो अर्श पर है, अलल अर्शी सुम्मस्तवा अलल अर्श, अर्श पर वो मुस्तवी है कह देना, ऐसा गलत हो गया। ये कहना है कि भाई अगर कोई यूँ कहे कि अल्लाह अर्श पर है तो ये मतलब वो गलत हो गया, गलत हो जाएगा। अर्श पर है कह करके कहा तो मकान साबित हो गया, अक्लन और शरअन दोनों गलत है, मुआखिजा होंगे। यही अल्फाज जो है अरबी में अगर अदा करें हम, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो माना मुराद जो आप ज़ाहिरी माने पे आप अकीदा बनाएंगे तो ईमान खराब हो जाएगा। तमाम मुफस्सिरीन से मुखालिफत और मुनहरिफ हो जाएंगे, जो अक्लन और शरअन दोनों जायज़ नहीं है। मौलाना फिक़हुल अफ़सद के अंदर हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है, अबू मूती अल-बकी जो है उनके शागिर्द थे। जी जी। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस अकीदे को लिखा है। जी जी, क्या लिखे हैं? जो ये कहे कि मैं ये नहीं जानता कि अल्लाह अर्श पर है या नहीं है, तो वो काफिर है। अर्श पर है या नहीं है, अर्श पर होना उससे साबित हो रहा है। जी, मैं यही कह रहा हूँ। वो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन सी किताब में लिखे हैं, वो अरबी जरा इबारत पढ़ दें। अभी अरबी इबारत मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन मैंने आपको तर्जुमा सुना दिया मौलाना। ठीक है, मैं तो देखूंगा, उसके बाद वो आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। किताब का नाम क्या बताए? फिक़हुल अफ़सद के अंदर है, और आगे अकबर फिक़हुल अफ़सद, फिक़हुल अफ़सर नामी किताब। मैंने मौलाना अबसत कहा, अबसत। जी हाँ, सुनिएगा गौर से, अकली दलील के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला खालिक है और अर्श मखलूक है। खालिक अज़ल से है, अगर अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर माना जाए तो सवाल पैदा होगा, अर्श नहीं था तो अल्लाह तबारक व तआला कहाँ था? नहीं, इस चीज में मैं फंसा हुआ नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सुन लीजिए गौर से ताकि लोगों को भी फायदा हो, है ना? जी जी, मैं सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मैं भी इस अकीदे का कायल हूँ और ये अकीदा जो है हक है। मैं आपको पूरे हाल कर दे रहा हूँ, इत्मीनान से सुनिएगा। नहीं, मैं
میں یہ چیز مان رہا ہوں، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ مولانا طارق مسعود نے طارق مسعود سراسر غلط بولے ہیں اپنی زبان سے، تو عرش پر ہے کر کے بولنا ہی غلط ہے، کہنا یہ غلط ہے آپ کا، یہ بالکل غلط ہے۔ عرش پر ہے کر کے استوا کا معنی کوئی ہمت نہیں کیا کہ اس کی ظاہر کرے لوگ۔ کچھ تراجم آپ کے سامنے پیش کروں جو جنہوں نے یہ ترجمے کیے ہیں اللہ عرش پر ہے۔ عرش پر ہے کر کے تراجم کر کے اور مانا ہے وہ لوگ، ان لوگوں کا عقیدہ ایسا بنائے ہیں عرش پر ہے کر کے، تو وہی میں کہہ رہا ہوں، سن لیجیے، ترجمہ کرنا غلط ہے یا یہ عقیدہ بنانا غلط ہے؟ اس کو سن لیجیے، حقیقت مستوی علی العرش ہونے کی 3 صورتیں ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ 3 صورتیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کے محاذ میں ہوگا، دوسرا نمبر عرش سے متجاوز ہوگا یعنی بڑھ جائے گا، عرش سے یا تو کم ہوگا۔ یہ 3 ہی صورت ہو سکتے ہیں۔ مولانا یہ تفصیل چاہیے ہی نہیں نا اپنے کو، جو قرآن کریم کی آیت کا ظاہری ترجمہ لے اور اس ترجمے کے اوپر یوں کہے کہ بھائی یہ ترجمہ اور یہ جو اس کا معنی مراد ہے ہم اللہ کے سپرد کر دیں۔ جتنے بھی محدثین ہیں اس آیتوں کو آیت متشابہات سے لیے ہیں، تو اس کا ترجمہ کر کے ظاہری معنی پہ عقیدہ بنانا گمراہی ہے، اور گمراہی تو تمام مفسرین کے عقیدہ بنانے کی بات چلی نہیں مولانا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ظاہری ترجمہ لے کر کے یوں کہے کہ ہم اس کا معنی مراد جو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، تو یہ تفسیر میں نہیں داخل ہوگا کیا؟ ظاہری معنی نہیں کر رہے مولانا، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ تو کوئی اس کی ہمت ہی نہیں کیا کہ اللہ عرش پر ہے کا، کوئی مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، ویسے ہی کہہ دیا، کوئی استوا فرمایا کہہ دیا۔ اللہ عرش پر ہے یوں کہے اور پھر اس کا جو ہے اگر مفسرین نے وہ کہنا ہی اس کا غلط ہے۔ اللہ عرش پر ہے کہا کہ ثابت ہو گیا اس کے لیے مکان بس، اور آگے تعویلات کر کے بول رہا ہے کہ میں نہیں مانتا اس پر۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو یہ تو بیکار بے محمل بات ہو گئی نا۔ اچھا جی ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ یہی جو ہے میں سننا چاہتا تھا کہ کچھ تراجم ایسے ہیں میرے پاس جنہوں نے اللہ عرش پر ہے یوں ترجمہ کیا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے جو غیر محدود ہے، عرش مخلوق ہے جناب جو محدود ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانیں گے تو سوال پیدا ہوگا غیر محدود کیسے سمجھ گیا عرش پر؟ میرا عقیدہ سنیے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ازل سے مانتا ہوں، اور عرش جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، اور اللہ جو ہے استوا جو فرماتے ہیں اس کے جو ہے استوا کے معنی مفسرین نے بہت زیادہ لیے ہیں، قریباً کچھ علماء نے لکھا ہے 29 یا 19، ٹھیک ہے 29 میرے پاس حوالہ ہے اس کے تفسیر۔ جی 29 یا 19 کے معنی لیے ہیں، یعنی جید اکابرین جو محدثین میں شمار ہوتے ہیں، ایسے ہی سے ان آیات متشابہات سے عقیدہ نہیں بنایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر ہے کہنا ہی غلط ہے، اسی پر مواخذہ ہوگا، وہ رجوع کرے اس سے اور توبہ کرے۔ طارق مسعود صاحب جو بولے ہیں بالکل سراسر غلط بولے ہیں، اور الیاس گھمن صاحب نے اس کا رد کیا ہے۔ اچھا جی ٹھیک، تو میں ابھی جنہوں نے ترجمے کیے ہیں یہ اللہ عرش پر ہے تو یہ غلط ہے بالکل، آپ کے غلط ہے۔ تو اگرچہ کوئی ترجمہ کرے اللہ عرش پر ہے اور اس کے بعد یہ کہے کہ واللہ عالم بمرادی ہی، تو اس کے باوجود وہ جو ہے اس کا ترجمہ کرنا غلط ہوگا، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی اس کا وہ اللہ رب العزت وہ تو مراد پھر بول دیا، تو پھر بعد میں بولنے کی کیا ضرورت ہے اس کی؟ پہلے بول لیا، اس کے لیے مکان ثابت کر لیا، پھر کہے کہ اس کا مراد اور معنی اللہ جانتا ہے، یہ بولنا ہی غلط ہے پہلے نمبر تو۔ نہیں، جب وہ اس کی صراحت کر رہے کہ اللہ مراد جانتا ہے تو نہیں، وہ پہلے نمبر صراحت کرنے کی بات جب رہی تو اس کو بولنا ہی نہیں تھا ویسا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش مکان سے پاک ہے، منزہ ہے، جیسا پہلے تھا ویسا ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا وہ۔ اچھا، بعض 29 معنی جو ہے مفسرین نے جو بیان کیے، ان 29 معنی میں جنہوں نے استقرار معنی لیے ہیں 29 مفسرین کرام نے اس کو تمام کے تمام آیت جو 8 آیت ہے جو قرآن مقدس میں عرش استوا کر کے، اب سورہ ہود میں بھی پارہ نمبر 12 آیت نمبر 7 میں موجود ہے عرش استوا کر کے، ہے نا، اور دیکھیے گا سورۃ الرعد میں بھی پارہ نمبر 13 آیت نمبر 2 موجود ہے وہ عرش استوا کر کے، اور پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں الرحمن عرش استوا کر کے موجود ہے، اور پارہ نمبر الرحمن علی العرش استوا،
اور पारा नंबर 19 सूरतुल फुरकान में आयत नंबर 59 में भी मौजूद है ना। और पारा नंबर 21 जी 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 वो सारे हवाले अल्हम्दुलिल्लाह सूरह सजदा में मौजूद है। मुझे 8 जगह सूरह हदीद में मौजूद है। 6-8 जगह पे है अल्लाह के अर्श पे होने का जिक्र और आसमानों में होने का भी जिक्र है। पहले नहीं मतलब ये ख्याल रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मकान साबित करना ही फजूल है। अब जो कहे कि अल्लाह अर्श पर है सरासर गलत है, फिर ताबील करने की नौबत ही जरूरत ही नहीं। पहले साबित कर लेता है फिर ताबील करता है, गधा है ना वो। नहीं साबित तो कुरान से है ना हजरत, उसका तर्जुमा अगर हम निकालेंगे। तर्जुमा क्यों निकालेंगे जबकि बड़े बड़े मुफस्सिरीन से आगे बढ़ने की कोशिश कौन करता है, हिम्मत नहीं है हजरत मैं ये कह रहा हूँ कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, इस्तवा का कुछ मुतबादिल तर्जुमा तो होगा ना। इस्तवा माने मुतवातिर तर्जुमा नहीं, अल्लाह की तरफ से निस्बत कर दिया जाता है, वो आयत मुतशाबिहात है। अगरचे कोई अगर कोई अगर करे और उसको तर्जमा कर ले और कहे कि मैं मकान साबित नहीं कर रहा हूँ बल्कि तर्जमा कर रहा हूँ, तो ये मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से आगे बढ़ने की बात हो रहा है, मतलब कि गुरुइयत मुहद्दिसीन के कुछ हवाले में आपको जो है जी मुहद्दिसीन कसरत से हदीस मौजूद है इसमें। जी मेरे पास वो तफसील मौजूद है। और दूसरे कहते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी हमारा इख्तलाफ कहाँ पे हुआ, मेरी समझ से ये है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा का तर्जुमा यूँ कहना कि रहमान अर्श में मुस्तवी है और फिर जो है ये कहना इस्तवा है जैसे उसकी शान के लायक है, बस इतनी कह दीजिए बस। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं कभी मत कहिएगा अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर है, कभी मत कहिएगा। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे इख्तिलाफ ये कर रहा हूँ कि मुफ्ती तारिक मसूद नहीं हो कहा कि अल्लाह मुफ्ती तारिक मसूद साहब बोले तो गलत बोले। नहीं बिल्कुल आप और उसकी तायीद इलियास गुमन तायीद बिल्कुल नहीं किए हैं। नहीं मैं आपको क्या बोल रहा हूँ हज़रत, मेरी बात तो सुने। एक मसले के अंदर जो हमारा इख्तिलाफ, बाकी सारी बातें मैं आपके साथ जो है आपकी बात को मानता भी हूँ और कदर भी करता हूँ इन बातों की, ठीक है, क्योंकि मेरा भी अकीदा यही है। ठीक है। बात का इख्तिलाफ जो है सिर्फ इतना हुआ कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा का जो मुफ्ती तारिक मसूद ने तर्जुमा किया कि अल्लाह अर्श पर है, यहाँ तक तो मैं इख्तिलाफ करता था, लेकिन जब बाद में उन्होंने कहा कि इसका माना मुराद हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, तो यहाँ पे मेरा आपसे इख्तिलाफ हुआ और कुछ हवाले में इंशाल्लाह निकाल करके आपको भेजूंगा। तो ठीक है भेजिएगा इंशाल्लाह अज़ीज़, उस पर भी तफसील फिर बात करेंगे। ठीक है। तो मैं कह रहा था जो तारिक मसूद साहब जो बयान किए हैं अर्श पर है कह करके, उसी मुतालिक बात करना था। जी तो हम लोगों का अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि जैसे कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तक़वीलुल ईमान किताब लिखी है, सफ़ा नंबर 20 पर फरमाते हैं ला महदूदुन, अल्लाह तबारक व तआला महदूद नहीं है, वला फ़ी जिहतुन और उसके सिमत से भी पाक हैं, मशरिक़ व मगरिब से पाक है, जुनूब ऊपर नीचे सिमतें हैं, सब सिमतें उससे भी पाक हैं, वला मकानुन वला फ़ी ज़मानुन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकान और ज़मान से पाक है। ये एक हवाला। दूसरे हवाला इमाम शेख रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी अहले सुन्नत के इमाम मकतूबात रब्बानी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 63 पर फरमाते हैं अज ज़मान व मकान व जिहत दर हज़रत ऊ ताला गुंजाइश नीस्त, कहते हैं कि ज़माने और मकान और सिमतें होना अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं है, ये सब उसकी बारगाह में जायज़ नहीं है। ई हमा मखलूक हवानंद, ये तमाम मखलूक हैं, ज़माना मखलूक के लिए है, मकान व जगह मखलूक के लिए, हालात मखलूक पे गुजरते हैं, अल्लाह ताला इनसे पाक है। दूसरे हवाला हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तोहफ़ा-ए इस्ना अशरिया किताब नाम है, सफ़ा नंबर 141 अक़ीदा नंबर 13 के तहत फरमाते हैं आके हक ताला रा मकान नीस्त, हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला के लिए कोई मकान नहीं है। वह ऊरा जिहत फ़ौक़ व तहत मुतसव्वर नीस्त, ऊपर नीचे होना उसकी शान के लायक नहीं है, तसव्वुर नहीं किया जा सकता है, तसव्वुर से परे है। ये 3 हवाला मैं दिया। और जो कल बोल रहे थे ना कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो फतवा दिए हैं अर्श के ऊपर जो ना माने वो कुफ्र का फतवा दिए हैं कह करके, उसी का भी जवाब जो ना सब है। मैंने उस पर तहकीक की है जी। वो जो इमाम आजम का वो जो फतवा था जी वो ज़ईफ है, ठीक है, इमाम आजम तक साबित नहीं है। अबू मूती अल बल्खी जो है इनसे जिसने नकल किया है
उसमें और अबू मोती अल बल्खी के अंदर जो है 250 के कुछ साल का जो है फासला है। तो मैंने कल उसकी तहकीक की रात में, और आज सुबह में भी उसके जो है दुकान की मसरूफियत के बाद भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तहकीक की, तो वो ज़ईफ़ कौल था। जी बिल्कुल ज़ईफ़ कौल था, और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इसके खिलाफ दूसरा जो है कौल मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को इमाम आज़म ला मकान मानते हैं। वो फिक़हुल अक़सद का मैंने जो हवाला पढ़ा था ना, उसमें उससे तहु हो गया था। अल फिक़हुल अकबर नाम है किताब का, मैं डायरेक्ट देख लिया किताब का। जी। अब देखिएगा ये भी मैं इसके मुतालिक मैं तफसीलवार बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन ये जो अर्श पर है कह करके जो बोलते हैं ना, और उसके तावीलात बाद में कर लेते हैं कि अल्लाह उसके रसूल जाने, उससे मुराद उसको सुन लीजिए पहले। मैंने आपसे जो है बात करने के बाद जो हमारे मकतब फ़िक्र के मौलाना अबू हफ्सा साहब है, इनसे गुफ्तगू की, तो उन्होंने भी फरमाया कि ये जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने फरमाया है ये गलत है, बहुत गलत है। वो गलत ही नहीं बल्कि कुफ्र की हद तक पहुंच गए हैं। देखिएगा फतवा काजी खान में मैं डायरेक्ट देखा, मैं किताब बड़ी अफसोस हुआ, फ़िक़ह हनफी के मोतबर किताब है फतवा काजी खान, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 884 पे बाबू माकाना कुफ्रन मिनल मुस्लिमीन में काजी खान फरमाते हैं, रजुलुन काला खुदाए बरआ हिया दानत के मन चीज़े के नादानम, किसी ने कहा कि खुदाए तबारक व तआला आसमान में है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो जानता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में कह रहा, वो क्या कह रहा, आसमान पर है और मेरे पास कुछ भी नहीं है और इसको मैं नहीं जानता। तो कहते हैं यकून कुफ्रन लिअन्नल्लाह ताला मुनज़्ज़हुन अनिल मकानी, फरमाते हैं काजी खान साहब वो शख्स काफिर हो गया इसलिए कि उसने अल्लाह ताला के लिए मकान साबित किया, और अल्लाह के लिए अल्लाह का मकान से पाक होना साबित है कह करके फरमाए हैं। जी ये फतवा दिए हैं कुफ्र का। अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बड़ी तफसील के साथ जो है लिखा हुआ है किताबों में, और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बहुत ज्यादा तफसील लिखी हुई है। और एक फिक़ह हमारे फिक़ह आपके देवबंदियों के नज़दीक और बरेलियों के नज़दीक जो दोनों मोतबर है फतवा आलमगीरी में फरमाते हैं युकफ़िरु बिइस्बातिल मकानिल्लाहि ताला, कुफ्र है ये कि अल्लाह ताला के लिए जगह और मकान मुतय्यन किया जावे। लेकिन मसला एक ये हो जाता है हज़रत के जब हम गुफ्तगू करते तो हम तो इससे मुत्तफिक है, अइम्मा तो जो है हमारे अइम्मा ने जो तशरीहात की है अकाइद की, तो हम तो इसको मुत्तफिक है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुतमईन भी है इससे। अब ये हो गया, ये क्लियर हो गया, तारिक मसूद साहब जो बोले हैं बहुत रंग बोले हैं, उसका कोई भी तायद नहीं करेगा। जी बिल्कुल, मैंने जो है मैं खुद जो है ताकि वो जो दूसरी जो उनकी दीगर बातें हैं मैं उससे मुत्तफिक था, लिहाजा मैंने इसकी तहकीक की। ठीक है, मैंने आपसे भी तहकीक की, मैंने जो है हमारे उलमा जो है 3-4 जो उलमा है मैंने उनसे भी इसकी जो है लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। आप हासिल मुकम्मल कर लिए मतलब है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये तशफ़ी हो गए। तो अल-उलू एक किताब है, अल-उलू किताब इमाम ज़हबी की है। हाँ जी, जो इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये मुक़ल्लिद हैं। अबू मोती बल्खी, जिनका नाम अबू मोती बल्खी जो कहते हैं, जिनका असल नाम है अल-हिकम इब्ने अब्दुल्लाह बल्खी है, जिन्होंने अल-फिक़हुल अकबर नामी किताब तसनीफ़ किया, जो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद तकरीबन पौने 200 साल के बाद लिखा है। क्या किया है? किताब के नाम में थोड़ा शायद आपको कंफ्यूजन है। हाँ, किताब के नाम आप गलत बोल दिए थे। नहीं, मैंने जो तहकीक की उसमें जो मुझे मिला कि किताब अल-फिक़हुल अबसत अल-फिक़हुल अकबर वो तसनीफ किया है वो अबू मोती बल्खी ने, और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद पौने 200 साल के बाद वो लिखा है वो किताब, है ना। लेकिन कोई धोखा देता है, ये जैसे गैर मुक़ल्लिद धोखा देते हैं, खास करके इमाम आज़म अबू हनीफा का ऐसा अकीदा है और इन लोग ऐसे अकीदे रखते हैं, लिहाजा हनफी लोग काफिर हो गए कह करके ये ऐलान करता है। आप भी सुने होंगे। नहीं, अच्छा, ये जो मैंने ये भी सुना हूँ, और ये जो कौल है मैंने कौल जो है हमारे उलमा को भी पढ़ के सुनाया, तो उन्होंने फरमाया कि ये जो कौल है
ये कौल असल में गैर मुकल्लिदीन अधूरा पेश करते हैं। जी जी जी, अधूरा नहीं, पूरे भी पेश करेगा। और ये अबू मोती बल्खी पक्का कज़ाब है, मेरे पास हवाला मौजूद है इसके, है ना। अच्छा, देखिएगा, मुझे लगा दीजिए हज़रत। इंशाल्लाह मैं लगा दूंगा। इसकी सनद पेश कर देता हूँ, सुन लिएगा। ये भी नहीं, क्योंकि अबू मोती बल्खी का विसाल तो 211 हिजरी में, और अल्लामा ज़हबी जो अबू मोती बल्खी से जो रिवायत लाए हैं उनकी पैदाइश है 673 हिजरी, यानी मोती बल्खी और अल्लामा ज़हबी के दरमियान 462 साल का फासला है। कितना फासला है? 462 साल का। हाँ, तो बिल्कुल जो है, तो ये दरमियान में जितने हैं सब के सब गोल रावी, कोई पता ही नहीं, है ना। तो मैं पूछना चाहूंगा कि कश्फ को भी तस्लीम करने लगे ये गैर मुकल्लिद जो एतराज करते हैं हनफियों पर। ये तो पूरे आधे दिमाग वाले हैं, बहुत ये एतराज करते हैं। कौम जो है तासुबी है, और ऐसे ऐसे एतराज लाते हैं कि जिसकी कोई जो है ना सर है ना पैर है। खुसूसन कुछ गैर मुकल्लिदीन ऐसे हैं जो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से भोगते रहते सारा दिन। तो मैं उसी पे जो है काम पे फोकस कर रहा हूँ। जो इमाम आज़म के अक़वाल ये पेश करते हैं ना, उस ताल्लुक से ही जो है तहक़ीक़ में लगा हूँ। तो अगर आपकी कुछ मुझे हेल्प चाहिए रहेगी अगर, तो मैं कॉल किया करूँगा। जी जी जी, देखिएगा, इन लोगों के सरगना जो अलबानी जी हैं और दीगर हजरात भी हैं, लेकिन अलबानी जी किताब शरह अक़ाइदुत तहाविया के हाशिया लिखा है उसने, सफ़ा नंबर 42 पे दिखाते हैं अबू मोती बल्खी कज़्ज़ाब है, हदीसें गढ़ने वाला है कह करके। जो इनका अल्लामा अलबानी है, इसमें जो है आज मैं एक गैर मुकल्लिद से मेरी बात हो रही थी विषय में जी, तो इसने एक हदीस को जो है कोट किया है, एक नकल किया है हदीस को, और नमाज नबी जो है इसका तर्जुमा मालूम नहीं किसका है, गैर मुकल्लिदों का ही है। वो वही लोगों का है जी। तो उसके अंदर जो है इमाम हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ईफ़ लिख दिया उसने। या अल्लाह, अजीब तमाशा बना के रखा है। उन लोगों के सर हैं ना पाँव हैं, बल्कि तासुब में जल रहे हैं। और बुजुर्गाने दीन से वो दुश्मनी और अदावत अच्छी चीज नहीं होती है। अलबानी तो ऐसे लिखा। और एक गैर मुकल्लिद बड़े आलिम सलाहुद्दीन यूसुफ, उन्होंने किताब उर्दू में खवातीन के तरीके नमाज लिखी, सफ़ा नंबर 33 पे लिखते हैं अबू मोती बल्खी इंतहाई झूठा और कज़्ज़ाब था। उनके यही जो है और जो है क्या कहते हैं, इसी ज़िमन में जो है ये रिवायत थी औरतों और मर्दों की नमाज में फर्क। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे कि भाई यूं करके जो है औरतें अपने दोनों पाँव को सिमट करके नमाज पढ़े, ऐसी कुछ इबारत थी। उन लोगों का तो ये भी कहा ना, उस इबारत को जो है उसने कोट किया और आगे लिखता है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यही है। इसलिए उन लोगों के अकीदे के खिलाफ है ना। और साहबी से दुश्मनी करेगा, वो भी खलीफा हैं। और खलीफा जानते हैं, सहाबा से भी आला दर्जा का मर्तबा रखते हैं। जी, मौलाना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल तो ले लेते हैं, लेकिन जो इमाम मालिक नाफे की जो 3 दिन की कुर्बानी उसको नहीं लेते, कहते कि भाई प्रभु हो गया। उन लोग तासुब में जल रहे हैं। बहरहाल मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि इमाम ये मोती बल्खी के बारे में, तो उनके बड़े अल्लामा जुबैर अली जई जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने किताब लिखा फतावा अलमिया अल मारूफ तौज़ीहुल अहकाम जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 137 पर लिखा है अबू मोती बल्खी कज़्ज़ाब था। बहुत सारे हवालाजात मौजूद हैं इसमें। अगर एतराज़ करेगा तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अर्श पे माने वो बिल्कुल दायरे इस्लाम से खारिज है, मकान साबित करता है। और ये हम लोगों का पूरे हनफियों का इसमें इजमा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लामकान है, उसके लिए साबित करना जायज़ है। और मकान साबित करना उसके लिए ईमान से खारिज होने की अलामत है। ठीक, तो मौलाना इनके अगर स्कैन आपके पास मौजूद हो तो मुझे भी दे दीजिए ताकि जी आपको ज़रूरत होगा मैं बता दूंगा। अल उलू किताब इमाम ज़हबी के हैं, वो भी लिखे हैं, लेकिन दोनों के दरमियान बहुत फासले हैं। और भी बहुत सारे हवालाजात मौजूद हैं। इस ताल्लुक से पोस्टें भी होंगी तो मुझे लगा दीजिए। ठीक है इंशाअल्लाह।